Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्लोक पढ़ लेते हैं। विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलप्यतम् ब्राह्मणी आत्मानम् आधारे घटांबरमिवांबरे। So translation by Srila Prabhupada. Dhritarashtra will have to amalgamate his pure identity with intelligence and then merge into the Supreme Being with knowledge of his qualitative oneness. As a living entity with the Supreme Brahman being freed from the locked sky, he will have to rise to the spiritual sky. So, purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The living being, by his desiring to lord it over the material world and declining to cooperate with the Supreme Lord, contact the sum total of the material world, namely the Mahatattva. And from the Mahatattva, his false identity with the intermaterial world, intelligence, mind, and senses is developed. This covers his pure spiritual identity. By the yogic process, with the pure identity is realized in self-realization, one has to revert to the original position by amalgamating the five senses elements and the subtle elements, mind and intelligence, into the Mahat Tattva again. Thus, getting freed from the clutches of the Mahat Tattva, he has to merge in the existence of the Super Soul. In other words, he has to realize that qualitatively he is non-different from the Super Soul, and thus he transcends the material sky by his pure identical intelligence, and thus becomes engaged in the transcendental loving service of the Lord. This is the highest perfectional development of spiritual identity, which was attained by Dhritarashtra by the grace of Vidura and the Lord. The Lord's mercy was bestowed upon him by his personal contact with Vidura, and when he was actually practicing the instructions of Vidura, the Lord helped him to attain the highest perfectional stage. A pure devotee of the Lord does not live on any planet of the material sky, nor does he feel any contact with material elements. His so-called material body does not exist, being surcharged with the spiritual current of the Lord's identical interest, and thus he is permanently freed from all contaminations of the sum total of the Mahatattva. He is always in the spiritual sky, which he attains by being transcendental to the sevenfold material coverings by the effect of his devotional service. His conditioned souls are within the coverage, whereas the liberated soul is far beyond the cover. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हम लोग को कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने योगिक प्रोसेस करके अपने सेंसेस को कंट्रोल किया था, अपने मन को एकाग्र करने का जो तरीके से उन्होंने अपने मतलब मोक्ष पा लिया था गोलोक वृंदावन में जाने का। लेकिन यहाँ पे उन्होंने
मतलब प्रभुपाद जी ने ये चीज को क्लियरली बताया है कि धृतराष्ट्र जो थे वो उनके पास अनटायरिंग बोल सकते हैं ना, रिलेंटलेस, मतलब कम ना, कभी भी कम ना होने वाला सेंस प्लेजर के डिजायर्स थे उनको। मतलब अपने खुद के इंद्रिय भोग के लिए वो, उनकी जो तरस थी इंद्रिय भोग के लिए वो कभी भी खत्म ना होने वाली थी, बहुत थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, विदुर जी की इंस्ट्रक्शंस थे, विदुर जी ने जब इनको बहुत समझाने के बाद उन्होंने फिर उनकी बात मानी, और फिर उन्होंने योगिक योगिक प्रोसेस, मतलब उनको जो योगा के माध्यम से उन्होंने अपने जो इंद्रिय भोग की जो इच्छा थी उन पे उन्होंने कंट्रोल किया, और जिसके वजह से उन्हें फिर वो जो मुक्ति का मार्ग जो था, मोक्ष का मार्ग था, वो खुला हो गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत एक अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन देते हैं कि हम लोग को, जो भी हम लोग भगवान की कार्य करते हैं, या जो भी हम लोग कोई भी, मतलब हम लोग आध्यात्मिक कार्य में खुद को आगे बढ़ाते हैं, तो वो खुद की मर्जी से नहीं करना चाहिए, मतलब खुद के हिसाब से या खुद की इच्छा के अनुसार नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम लोग को भगवान को क्या चाहिए, भगवान को किस तरीके से हम लोग मतलब भगवान को क्या चाहिए, हम लोग भक्ति कैसी करनी चाहिए, वो उस हिसाब से हम लोग को भक्ति करनी चाहिए। और जैसे कि धृतराष्ट्र जो इंद्रिय भोग में पूरी तरह आसक्त थे, उनको विदुर जी ने जैसे बताया, फिर मतलब आखिर में धृतराष्ट्र ने क्या किया, उनकी मर्जी से नहीं किया, उन्होंने जो किया वो धृतराष्ट्र के कहने से किया। तो धृतराष्ट्र उनके शिक्षा गुरु जैसे बन गए थे, और उन्होंने धृतराष्ट्र के जो विदुर जी शिक्षा गुरु जैसे बन गए थे, और फिर वो विदुर जी ने जो कहा था धृतराष्ट्र ने एग्जैक्टली वैसे किया। तो हम लोग को, मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बता रहे थे, एक्चुअली मैं सूरा प्रभु जी करके है उनके, मैं एक लेक्चर सुन रहा था। उन्होंने बहुत अच्छे दो एग्जांपल्स दिए थे, मतलब दो प्रभुपाद जी के एग्जांपल दिए थे और दो अलग एग्जांपल उन्होंने दिए थे। तो उन्होंने कहा था कि मतलब सूरा प्रभु जी एक बार वृंदावन में थे, और एक भक्त जो थे वो बहुत सुंदर तरीके से अपने वहां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र गा रहे थे। और तो मतलब प्रभु जी बोल रहे थे कि हम लोग को इतना अच्छा लगा था, मैं बहुत खुशी से, मतलब ये फूले नहीं समा रहा था कि इतना सुंदर लग रहा था वृंदावन में हम लोग बैठे शाम के टाइम पे, इतना अच्छा मतलब महामंत्र सुनने को मिल रहा है, कीर्तन हो रहा है। तो एक प्रभुपाद जी कहीं दूर बैठे थे, तो उन्होंने अपने सर उठाया और बोल रहा है ये कौन गा रहा है राक्षस की तरह। तो सूरा प्रभु जी बोल रहे थे, मतलब मैं बहुत, मुझे एकदम आश्चर्यचकित होके मैं एकदम ये देखने लगा कि इतना सुंदर भजन गा रहा हूँ, मतलब कोई एक भक्त गा रहा है, और वहां पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये राक्षस की तरह गा रहा है करके। तो तभी प्रभुपाद जी ने उनको बताया था कि जो कीर्तन हम लोग गाते हैं, वो कीर्तन पे हम लोग का ट्यून कैसा होना चाहिए, हम लोग को किस तरीके से गाना चाहिए। और फिर उन्होंने और एक एग्जांपल दिया था कि प्रभु जी बोल रहे थे कि हम लोग ऐसे ही कीर्तन में हम लोग नाच रहे थे, और वो नाच में बोलते हैं हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत मस्ती में हम लोग नाच रहे थे। तो अचानक प्रभुपाद जी आ रहे और उन्होंने सबको डांटा और बोले कि ये नाचना नहीं होता है, नाचना हम लोग को, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया, हम लोग को वैसे नाचना चाहिए, दो हाथ ऊपर उठा के, एक पाव एक बार, दूसरे पाव दूसरे बार, ये उठा के जो नॉर्मल पद्धति से वैसा बोलते हैं, वो कीर्तन पे नाचना वैसे होता है। हम लोग को अपने मर्जी की तरह से नहीं नाचना चाहिए। तो प्रभु जी मतलब हम लोग को, मतलब तभी ये बता रहे थे, इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि हम लोग जो भक्ति का, हम लोग जो सोचते हैं कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, वो हम लोग अपने मर्जी से नहीं करना चाहिए, हम लोग को स्पिरिचुअल मास्टर को फॉलो करना चाहिए कि उन्होंने कैसे बताया, हम लोग को वैसे भक्ति करनी चाहिए। प्रभुपाद जी का और एक एग्जांपल उन्होंने दिया था कि जब वो मतलब फिर आगे चल के प्रभु जी बता रहे थे कि हम लोग जो, मतलब हम लोग को जो अपना स्पिरिचुअल गुरु जो है, उसको हम, उसके वाणी पे हम लोग को कितना ध्यान देना चाहिए, हम लोग को उनके तरफ कितने मन से उनकी वाणी को हम लोग ने समझना चाहिए। तो मगारी का एग्जांपल, जो हंटर था मगारी, जिनको नारद मुनि जी ने उनको अच्छा किया था, उनको रास्ते पे लाया था, उनका एग्जांपल दे रहे थे कि जब प्रहलाद मुनि के साथ नारद जी मगारी को मिलने आ रहे थे, और मगारी को जब पता चला कि नारद जी आ रहे, तो वो तुरंत वहां से दौड़ दौड़ के आ गया, और वो क्या करने लगा कि नारद जी जिस रास्ते से आ रहे, उस रास्ते के नीचे
वो झुक के उनके पथ को साफ कर रहा था। तो प्रहलाद महाराज ने फिर उनको मतलब जो पूरा प्रहलाद मुनि जी थे, उन्होंने फिर उनको नारद मुनि जी को पूछा कि ये क्या कर रहा है, कि ये आपका भक्त है, ये आपका शिष्य है और ये उसने आपके साथ होना चाहिए, तो वो मिट्टी पे क्या कर रहे हैं? तो नारद मुनि जी ने उनको बताया कि ये मेरी वाणी को फॉलो कर रहा है। वो मेरे रास्ते पे आने वाले हर एक जो चींटी है, उनको साफ कर रहा है, उनको बाजू में कर रहा है ताकि वो मेरे पाँव के नीचे ना आए। तो ये जो था, ये बोल रहे हैं कि प्रभु जी ने बताया कि ये जो मगारी का जो एग्जाम्पल है, वो मगारी ने जो किया है वो एक अच्छा एग्जाम्पल बता रहा है कि हम लोग को जो स्पिरिचुअल गुरु रहता है, उस स्पिरिचुअल गुरु की वाणी को हम लोग को कितने ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। कि मगारी ने तभी नारद मुनि के साथ होने से इम्पोर्टेंट, उसने नारद मुनि जी के पाँव के नीचे आने वाली कुछ चींटियों को बाजू में करके करने का उन्होंने वो ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया, जिससे नारद मुनि जी ज्यादा प्रसन्न हो गए और खुश हो गए। तो वही एग्जाम्पल उन्होंने फॉलो मतलब कंटिन्यू करके उन्होंने प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल दिया था, सूरा प्रभु जी ने, कि एयरपोर्ट पे जब उन लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तभी प्रभुपाद जी आ गए थे और प्रभुपाद जी डिस्ट्रीब्यूशन में जब शामिल हो गए, तो जो लोग देख रहे थे उनको मतलब प्रभुपाद जी का बुक पे प्रभुपाद जी का फोटो भी दिख रहा है और सामने प्रभुपाद जी देख रहे थे। तो वो भी काफी अचंभित जैसे हुए थे। लेकिन वो सब चीज को प्रभुपाद जी छोड़ के जब चले गए उनके आश्रम में, तो ये जो लोग जो थे सूरा प्रभु के साथ, वो चले नहीं गए, वो वहीं पे रुक के उन्होंने अपना जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो जो काम था वो कंटिन्यू रखा। तो मतलब वो एग्जाम्पल में प्रभु जी वही बता रहे कि हम लोग को जो अपने गुरु ने जो हम लोग को जो बोला है, उसके तरफ हम लोग को कितने अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए, कितने वो उसको कितना अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। तो मतलब हम लोग को जो है कि अपने हिसाब से अपने तरीके से कृष्ण भक्ति नहीं करनी चाहिए। भले हम लोग कृष्ण भक्ति करेंगे, मन से करेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर वो उस कृष्ण भक्ति में वो अपना अगर तरीका, अगर वो बाधा लाता है, तो उस वो बाधा हम लोग को शायद खुद के मन से अपने को पता नहीं चलेगा, खुद के बुद्धि से हम लोग को पता नहीं चलेगा। हम लोग को उसके लिए अपने स्पिरिचुअल गुरु जो है उनकी मदद लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जो धृतराष्ट्र के जो गुरु थे, विदुर थे, उन्होंने उनको अच्छी तरह से बताया था कि वो जो कर रहे थे, जहाँ पे रुके थे, वो गलत है, उनको वहां से निकलना चाहिए। वो अपने मतलब थोड़े से उन्होंने हार्श वर्ड्स भी यूज किए थे विदुर धृतराष्ट्र को, कि आप किसी के टुकड़ों के पल पे पल रहे हो, अगर वो लेवल पे जाके उन्होंने उनको बोला था। क्योंकि उनको धृतराष्ट्र की दिख रहे थे कि धृतराष्ट्र गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको वहां से निकालना था, उनको कृष्ण की भक्ति में लाना था। उसके लिए विदुर जी ने थोड़ा सा मतलब गलत शब्दों का प्रयोग किया था, गलत नहीं बोल सकते थे, हार्श वर्ड्स का प्रयोग किया था। जैसे प्रभु जी हम लोग को, सूरा प्रभु जी हम लोग को मतलब उस लेक्चर में बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी भी कभी कभी गुस्सा करते थे, लेकिन वो गुस्से में उनका जो प्यार था भक्तों के प्रति, और भक्तों के प्रति वो जो मतलब जो ये था कि भक्तों से गलती नहीं होनी चाहिए, भक्तों ने भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, उनसे कुछ वो पतन नहीं होना चाहिए, उस लेवल वो सोच में प्रभुपाद जी भक्तों को डांटते थे। तो उसी तरह से ये एग्जाम्पल यहाँ पे ये होता कि मतलब विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को थोड़े हार्श वर्ड्स यूज किए थे, उनको थोड़ा सा भला बुरा कहा के उनको, लेकिन उनका पीछे वो रीजन था कि धृतराष्ट्र उस जो माया जाल से निकले, इंद्रिय तृप्ति से बाहर निकले और वो भगवान के कार्य में खुद को आगे करे। तो यहाँ पे हम लोग को मतलब जो ये जो पर्पट है, जो प्रभुपाद जी हम लोग को बताया कि पर्पट में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि हम लोग को स्पिरिट जो भगवान के भक्त है, जो अपने स्पिरिचुअल गुरु है, उनकी बात हम लोग को माननी चाहिए। तो एक चीज मतलब मुझे यही बताने मतलब मन में आ रहा है कि हम लोग भगवान की भक्ति हम लोग जब करते हैं, तो हम लोग को भगवान ने हम लोग को जो कहा है, उनको भी उसके तरफ भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और वो जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि श्री कृष्ण ने जो 65th श्लोक में 18 अध्याय में जब कहा है कि मन मना भव मत भक्तो मद्यप नाम नमस्कुरु माँ में वैश्य से माँ में वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, इसमें जो प्रति जाने प्रियोसी में, ये कितना इंपॉर्टेंट श्लोक मतलब पॉइंट है, इसको हम लोग को थोड़ा सा और गौर करना चाहिए। कि जब
हम लोग जब श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि प्रतिजन प्रियोसी में कि तुम मेरे प्रिय सखा हो करके, तो आज भी हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, हम लोग भक्ति का अर्जन करते हैं अर्जुन की तरह। तो आज हम लोग के लिए भी मतलब वो जो प्रतिजाने प्रियोसी में, तो हम भी प्रतिजाने प्रियोसी में हैं भगवान के। और हम लोग प्रिय किसको बोलते हैं? जिस पे हम लोग प्यार करते हैं। और कृष्ण हम पे प्यार कर रहा है, हमको प्रिय बोल रहा है, और हम लोग भगवान को प्रिय कहने से डरते हैं, प्रिय कहने को मतलब कचराते हैं, जबकि वो सुप्रीम पर्सनालिटी है। आज हम लोग सेलिब्रिटीज को प्रिय, वो अपने को कहना चाहिए कि हम लोग रोते रहते हैं कि कोई सेलिब्रिटी है और उसने अगर अपना नाम लिया तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, अरे उसने मेरा नाम लिया करके। और आज श्री कृष्ण भगवत गीता में हर एक का नाम लेके बुला रहे हैं कि प्रतिजाने प्रियोसी में, लेकिन लोग उनको भूल रहे हैं। और ये बहुत मतलब ये बोलते हैं ना, हम लोग कितना पतन हो रहा है कि जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड जो है, जो हम लोग को प्रिय कह के हम लोग को बुला रहे हैं, आज हम लोग उसको याद नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं मतलब ये जो अध्याय था और इसका जो श्लोक था, उसका वाणी में यहाँ पे मतलब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई रही तो प्लीज मुझे माफ कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा समीर प्रभु, थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस। बहुत अच्छा आप लोगों ने आपने उदाहरण दिया प्रभुपाद जी का जो था, और वो जो लेक्चर से जो था, तो जो सारा सार है मतलब सेवा कैसे करना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस कैसे लेना चाहिए, सो ऑल दिस थिंग्स बहुत अच्छे से आपने समझा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु दंडवत प्रणाम। सच में आपका लेक्चर बहुत अच्छा था। आपने वो जो नारद मुनि और मृगारी का जो बोला कि साथ में रह के सेवा रहने से ज्यादा सेवा करना कितना महत्व है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा समीर प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु। बहुत ही आपने आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टच किया प्रभु। लाइक हमको गुरु का आज्ञा मानना चाहिए, और हमारे जो प्रभुपाद के डिसाइपल है जय अद्वैत स्वामी महाराज, वो भी हमेशा जब भी कीर्तन वगैरह होता है, उनको जो हम लोग नए नए जो स्टाइल में या फिर अपना जो एक्सप्रेशन या इवन इंस्ट्रूमेंट्स, उनको ही ऑलवेज वो बोलते हैं कि यूज मत करो, क्योंकि कीर्तन हमको किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, केवल भगवान का नाम का प्रचार करने के लिए यूज करना होता है। तो अभी जैसे मॉडर्न और अभी की जो पीढ़ी, कभी कभी हम लोग बहुत सारे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट और वो जैसे परफॉर्मेंस होता है ना, जैसे कॉन्सर्ट वगैरह, उस वो मूड में चले जाते हैं। बिकॉज ऑफ विच वो महाराज हमेशा प्रभुपाद का जो स्टैंडर्ड है उसको दोहराते रहते हैं। प्रभुपाद डिडंट लाइक दिस। प्रभुपाद ने काफी सा टाइम कीर्तन उन्होंने बंद भी करवाया था, ऐसे जब उनके शिष्य डिफरेंट मोड में चले जाते थे। ही हैज इवन स्टॉप्ड कीर्तन, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन। जैसे आपने कहा कि हु इज दिस, क्या कहा, राक्षस सिंगिंग, तो उस तरह से इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभु, क्योंकि इन द एंड हम लोग यहाँ पे प्रभुपाद को फॉलो करेंगे तो ही हमारी प्रगति होगी, नहीं तो इट विल बी वन काइंड ऑफ हम थोड़ा बहुत नाम, थोड़ा यश कमा के फिर जो मेन गोल है हम उससे पतन हो जाएगा। तो फॉलोइंग गुरु प्रभुपाद इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने आज बहुत अच्छी तरह से समझाया। शॉर्ट बट एकदम स्वीट लेक्चर था विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, विल ऑलवेज रिमेम्बर दिस। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। या हरे कृष्णा। या सूरज माता प्रभु ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये करना चाहता हूँ कि जैसा ऑडियंस है, जैसे अगर हम लोग वैष्णवों के बीच में हैं तो वी हैव टू डू दैट टाइप ऑफ कीर्तन। लेकिन जैसे अभी इंद्रधुम्न महाराज हैं,
या साक्य प्रेम प्रभु हैं, तो दे आर यूजिंग ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो क्यों वो लोग क्या करते हैं? बिकॉज दे वांट टू अट्रैक्ट यूथ जनरेशन। उनके सामने अपना करताल और मृदंग लेंगे तो आई थिंक वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। आज पोलैंड में इतना बड़ा जो फेस्टिवल होता है वुडस्टॉक फेस्टिवल, तो कितना मतलब हजारों लाखों यूथ आता है वहाँ पे, एंड स्लोली पोलैंड में जो है बहुत सारे यूथ ज्वाइन हो रहे हैं। तो या प्रभुपाद ने जो इंस्ट्रक्शन दिया इट इज राइट, बट आई थिंक जो हिंदू धर्म महाराज या साक्यरस प्रभु साक्य प्रेम वो जो यूज करते हैं, दैट इज मतलब उनको ये नहीं समझना चाहिए कि दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट एज पर ऑडियंस मतलब उनको अगर खींचना है तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्रसाद का भी, प्रसाद इज गुड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हम लोग एक बार भक्ति में आगे बढ़ने लगेंगे तो फिर हम लोग वही जो प्रसाद है हैज टू बी सात्विक। हम लोग वही मतलब पहले जैसा ओवर ईटिंग या दूसरों को हम लोग खिलाना नहीं चाहिए। जो न्यू भक्त है उनको बोलते हैं ना गले तक खिलाओ उनको, लेकिन जो उन्नत भक्त है उसका फिर चेंज हो जाता है। तो ये एक पॉइंट मेरे को शेयर करना था। हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. Thank you so much Samir Prabhuji. It's very wonderful class. As it's way मतलब जैसे कि आपका कल आपने बहुत शॉर्ट कोई कमेंट नहीं इंट्रोडक्शन है तो हम किया लोग था। फिर नरसिंह आरती लेते हैं। या प्रभु जी हरे सर्वोदय गिरधर प्रभु जी बोल रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। हरे कृष्णा। या प्रभु थैंक यू सो मच समीर प्रभु, इट्स वेरी वंडरफुल। मतलब बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में आपने ये जो क्लास जो है प्रभु उसको आपने ये किया, तो थैंक यू सो मच समीर प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद।